Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shriram Public School. Okay, till last lecture we have studied about the developmental goal from the income point of view to others. Now today we are going to see the national development. Okay, how the national developmental goal is differ from one country to another country and from one state to another state. Okay, as As we have seen above, individuals seek the different goals, then their notion of the national development is also likely to be different. For example, it means that how the people are having the different developmental goal, the same thing should be there with the nation also. I mean, the countries also having the different developmental goal from one country to another country. It is differ. How it is? Let's see. Discuss among the yourself on what India should be for development. For example, what is the development for India may not the same will be the development for USA, right? So it means that how the developmental goal is differ from one person to another person. The same way the developmental goal of one country to another country is also different. Okay. So let's discuss about that. Most likely you would find out different students in class have given a different answer to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not to sure for any of this. It is very important to keep in the mind that different person could have a different as well as a conflicting notion of the country's development. Conflicting notion, it means that maybe there is a developmental goal which individual person having is conflicting. I mean conflicts will be created with a developmental goal. There is a differentiation between the individual goal and his own nation goal. Okay, his own country goal may be differ, maybe a conflict will arise. I mean opposite situation will be arise. Okay, however, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflict, how does one decide? conflict मतलब होता क्या है कि एक दूसरे के बीच में के विचारों का ना मिलना. ठीक है, जैसे जो डेवलपमेंटल गोल हमारे लिए होगा जरूरी नहीं है कि वही हमारे कंट्री के लिए भी हो सकता है वो उसके अपोजिट में हो. राइट, इसी को कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट. व्हाट वुड बी द फेयर एंड जस्ट path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would be the idea benefit a large number of the people or only the small group? A national development means thinking about this question. इसका मतलब ये है कि जो आपका डेवलपमेंटल गोल है उसके थ्रू आपके अदर सोसाइटी को उसका बेनिफिट लार्ज अमाउंट में होता है या स्मॉल अमाउंट में होता है. ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. इसके बारे में सोचना, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होगा उसके थ्रू हमारे नेशन का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ये देखना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए एक स्लम एरिया है और वहाँ पे मेरा गोल है कि मेरा 5 स्टार होटल बने और बहुत सुंदर आलीशान सा रेस्टोरेंट बनाओ, ये वो. ठीक है, तो ये मेरा डेवलपमेंटल गोल है. बट माय डियर स्टूडेंट, अगर मुझे 5 स्टार होटल बनाना है वो भी स्लम एरिया में, तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ के स्लम एरिया को भी हटाना होगा, क्योंकि स्लम एरिया के बीच में अगर मेरा 5 स्टार होटल होगा तो कौन आएगा रेस्टोरेंट में? ऑब्वियसली कोई नहीं आएगा. आई एम सॉरी. ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, उन एरिया को भी हटाने का प्लान किया. अब मुझे बताइए कि मेरा डेवलपमेंटल गोल तो अचीव हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से सोसाइटी के जो लोग उस स्लम एरिया में हैं उनका लाइवहुड तो अफेक्ट होगा ही, उनको शेल्टर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही. राइट, तो यही आपको देखना है कि आपके डेवलपमेंटल गोल के थ्रू सोसाइटी को उसका इफेक्ट क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट में उसका रिएक्शंस क्या होता है. ठीक है, सो आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ द नेशनल डेवलपमेंट. दिस इज योर वर्क. ये एक्टिविटी आपको घर पर करनी है. ठीक है, नेक्स्ट, how to compare the different country or state. What development, how we are going to compare the developmental goal of one country with another country or one state with another state. You might ask if the development can mean a different things. How come some countries are generally called developed and other countries are underdeveloped?
ठीक है, अगर आप कहते हैं कि डेवलपमेंट मीन्स अ डिफरेंट थिंग्स, डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, तो हम किसी कंट्री को डेवलप कहते हैं, किसी कंट्री को अंडर डेवलप कहते हैं, किसी कंट्री को डेवलपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया डेवलपिंग है, तो ये डेवलपिंग, अंडर डेवलप, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता होगा, और इन तीनों में जो अलग अलग कंट्री को हमने, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। व्हेन वी कंपेयर द डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव अ सिमिलैरिटी एज वेल एज द डिफरेंस। हम कब किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं, मतलब किसी भी कंट्री का डेवलपमेंटल गोल हम कब कंपेयर करेंगे। जैसे यूएसए डेवलप है, तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, अगर वही फैसिलिटी हमारी कंट्री में भी है तो हमारा कंट्री भी डेवलप है, ऐसे होगा। या फिर उनके कंट्री में जो है उसके एग्जैक्ट अपोजिट या उससे कुछ अलग हमारी कंट्री में कुछ है तो हम डेवलप होंगे। मतलब हम कंपेयर किस बेसिस पे करेंगे, सिमिलैरिटीज़ पे या डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, कोई भी कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है, इसका कंपैरिजन सिमिलैरिटीज़ पे होता है, डिफरेंशिएशन पे होता है। देखते हैं विच इज़ एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम। लेट अस एट द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू we compare different student? They differ in their height, health, talent and the interest. As you know, all the student are not having the same height, same health, same talent and same interest, I mean same hobby। और भी बताएं, IQ लेवल भी सबका सेम नहीं होता है, मार्क्स भी सबके सेम नहीं आते हैं, इंटेलिजेंसी लेवल भी सबकी सेम नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ अलग होने की वजह से हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे, है ना। द हेल्दी स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट वन, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज है वो फ्रेंडली नहीं रहता किसी के साथ। ठीक है, सो हाउ डू वी कंपेयर द स्टूडेंट। तो हम किसी भी स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है, इसका जजमेंट हम कैसे करेंगे। सी द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या निकलता है, आप एक क्राइटेरिया डिसाइड करिए कि किस बेस पे आप उनका कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, किस बेस पे आप उनका कंपेरिजन करेंगे। वी यूज़ द डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज एस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स टीम यूज़ कर रहे हैं, डिबेट टीम, म्यूजिक टीम और टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक, ये सारा आपका क्या है, पर्पस है। इसके बेसिस पे जिनका टैलेंट मैच करेगा उन्हीं को आप एज अ टीम लीडर चूज करेंगे। ठीक है, स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शेल वी गो फॉर इट। यानी अगर usually we take the one more important characteristic of the person and compare them based on this characteristic। ठीक है, अब हम लोग एक नया क्राइटेरिया लेते हैं। of course there can be the difference about what are important characteristic that should form the basis of the comparison। फ्रेंडलीनेस एंड द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। फ्रेंडलीनेस का मतलब तो आपको पता है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन का मतलब उनके अंदर टीम वर्क करने की कैपेबिलिटी है या नहीं। दूसरा, क्रिएटिविटी और मार्क्स स्कोर्ड सिक्योर्ड। ओके, this is true of the development too. For comparing the country, their income is to be considered one the most important attribute। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं कि दो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को हम उनके इनकम बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं मैम। ठीक है, मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्री का इनकम बहुत हाई है उस कंट्री को हम लोग डेवलप बोलेंगे, और जिस कंट्री का इनकम कम है उसको हम लोग अंडर डेवलप बोलेंगे। यस, ये हो सकता है। देखते हैं ये कितना सही है। I'm sorry, more developed than other with a less income. This is based on the understanding that more income means more of all things human needs, human being needs, and whatever the people like and should have, they will be able to get their greater income. It means that a country having the large income, high income, that is developed because the people of those country will be able to fulfill their basic needs with the paying of higher income, okay, and they can fulfill all their needs as compared to the country where the income is very low because that country's people are not able to fulfill their basic needs। if it is so, then अगर ऐसा है तो फिर तो अमेरिका में कोई पुअर होना ही नहीं चाहिए था, राइट। लेकिन वहाँ पे भी तो पुअर हैं, है ना। तो देखते हैं कि ये राइट है या आगे और कुछ दिया गया है।
A greater the income itself considered to be the important goal. Now, what is the income of the country? हम लोग पहली बात तो इनकम किसको बोलेंगे कंट्री की? कंट्री की इनकम मतलब सिंपल है मैम, इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी कंट्री में जितने लोग रहते हैं उन सबके इनकम को टोटल करके जो पैसा होगा उसी को हम लोग कंट्री के इनकम बोलेंगे. अच्छा, लेट्स सी. This gives us the total income of the country. Okay. However, for comparison between the countries, a total income is not much such useful measure. अब यहाँ पे तो कह रहा है कि नेशनल का टोटल इनकम जो होगा उसके बेस पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो वो सही नहीं है. क्यों? ऐसा क्यों है? सोचो सोचो. आई एम सॉरी. ऐसा इसलिए है माय डियर स्टूडेंट क्योंकि कंट्रीज़ के इनकम पे डिपेंड नहीं करता है डेवलपमेंट किसका कितना है. फॉर एग्जांपल, अब कोई कंट्री है उनका डेवलपमेंटल इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन उस कंट्री में पॉपुलेशन भी तो बहुत कम है. अब एक दूसरी कंट्री है उनका नेशनल इनकम बहुत कम है लेकिन उनका पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, राइट? तो कंजम्पशन भी तो दोनों का अलग होगा. इसके लिए हमने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है. वो क्या है? देखो. However, for comparison between the country, a total income is not such as a useful measure. Why? Since the country have the different population, as you all are know, right? Comparing the total income will not tell us what an average person is likely to earn. Other people in the one country better off than other in a different country. Hence, we compare the average income. Average income क्या मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के टोटल इनकम को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कंट्री के टोटल इनकम को जब हम वहाँ के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तब जो इनकम निकलता है वो पर कैपिटा इनकम होता है. इसका मतलब इस बेस पे हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट को इनकम पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. कैसे? जैसे मान लीजिए जो टोटल इनकम है जब आप उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो एक पर्सन का इनकम कितना हो सकता है ये हमें पता चल जाएगा. ठीक है, तो वैसे ही हम एक डेवलप नेशन और एक अंडर डेवलप नेशन की जब इनकम, एवरेज इनकम कंसिडर करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हम पूछेंगे. एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम वन एंड द सेम. एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, याद रखिएगा. नेक्स्ट, in world development reports brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying the country. The country with a per capita income USA $12,056 per annum. Per annum का मतलब होता है in a year. And above in 2017 are called rich country, and those with a per capita income USA $955 or less are called as a low income country. क्लियर हो गया? क्राइटेरिया मिल गया है, यानी कि 12,056 के ऊपर या 12,056 होगा तो वो डेवलप कंट्री और उनसे कम यानी 955 से कम होगा तो वो अंडर डेवलप कंट्री, रिच और पुअर कंट्री. ठीक. India come in the category of low middle income countries because its per capita income is was just 1820 पर एनम. इसका मतलब हम ना ही 12,056 में आते हैं और ना ही 955 में आते हैं, हम इन दोनों के बीच में हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई द इंडिया इज कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री. ओके, नाउ नेक्स्ट, the rich country excluding the countries of the Middle East and the criterion other small countries are generally called developed country. It means the country those who are whose per capita income go beyond the $12,056 USA dollar in a year, that country is known as the rich country or the developed country. Okay, now moving to the next topic, that is income and other criteria. Now we are going to see the income and the other criteria for the developmental goal purpose. When we look at the individual aspiration and goal, we found that people not only think of the better income but also have a goal such as the security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of the nation or the region, we may beside average income think of the other equal important attributes also. It means that
जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल का जो गोल होता है वो यही नहीं होता है कि उसकी अच्छी इनकम हो, उसके अलावा उनको और भी चीज़ें चाहिए जैसे सिक्योरिटी, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ईच एंड एवरीथिंग। मीन्स उनके साथ पार्शलिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर ना हो, ठीक है, अपर लोअर कास्ट बेसिस पे, ये सब भी वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे उनको अच्छा इनकम भी मिले और साथ ही साथ उनको इक्वल इम्पॉर्टेंस भी मिले सोसाइटी में, ठीक वैसे ही कंट्री भी चाहती है कि उनका एवरेज इनकम तो ठीक हो, साथ ही साथ उनको भी इक्वल इम्पॉर्टेंस मिले जो डेवलप कंट्रीज़ को मिलता है, ठीक है। What would this attribute be? Let us examine this through an example. Table 1.3 gives the per capita income. Okay? चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1.3. अब यहाँ पर देखिए 3 स्टेट दिया गया है, हरियाणा, केरल, बिहार. पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट पर कैपिटा इनकम इन 15-16 इन रुपीज़. हरियाणा का कितना है 1,62,034, केरला 1,40,190, बिहार 31,454. अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेट के डेवलपमेंट को कंपेयर कर रहे हैं. अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे डेवलप कौन सा स्टेट है और अंडर डेवलप कौन सा स्टेट है और डेवलपिंग कौन सा स्टेट है. सिंपल है मैम, सीक्वेंस वाइज दिया ही गया है. हरियाणा डेवलप है, केरल डेवलपिंग है और बिहार अंडर डेवलप है. रीज़न, बिहार सबसे लो इनकम पे चल रहा है. क्लियर हो गया, दैट्स इट, इतना ही है इसमें, ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया. अब हम लोग आगे चलते हैं. Gives the per capita income of Haryana, Kerala, Bihar. Actually, this figure are for per capita income, net state domestic product at current price. Let us ignore what is the complicated term exactly means. Roughly, we can take it to be the better per capita income. अब हम ये देखेंगे कि 3 स्टेट के जो इनकम्स दिए गए थे वो तीनों ही स्टेट एक ही कंट्री में है, बावजूद इसके इन तीनों का पर कैपिटा इनकम में इतना डिफरेंस कैसे, इतना डिफरेंस कैसे आया, ठीक है. We find that of their 3, Haryana has the highest per capita income. Income and Bihar is at the bottom. This means that on average a person in Haryana earn 1,62,034 in 1 year, whereas on average person Bihar earn 3455. इसका मतलब है हरियाणा में इनकम ज़्यादा है, बिहार में कम है. इसका मतलब अगर इनकम में इतना डिफरेंस है तो अदर फैसिलिटीज़ भी अफेक्टेड होंगी. लेट्स सी, if the per capita income were to be used as a measure of the development, Haryana will be considered as the most developed and Bihar the least developed state of the 3. Now let us see the 1.4. Okay, सम कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरल एंड बिहार. अब इनकम के अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे कैसे अफेक्ट करती हैं डेवलप अनडेवलप को, वो देखते हैं. हरियाणा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ 33, लिटरेसी रेट 82%, नेट अटेंडेंस रेशो पर 100% सेकेंडरी स्टेज 14 to 15 ईयर 61. ओके, केरल में क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जस्ट 10% है, यानी यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी कंपेयर टू हरियाणा बेटर है. लिटरेसी रेट सबसे हाई है, ठीक, 94%, और नेट अटेंडेंस रेशो कितना है 83%. उसके बाद आता है बिहार, जहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे हाई है 38, लिटरेसी रेट सबसे लो है और नेट अटेंडेंस कितना है 43. इसका मतलब बिहार हर एक तरह से बहुत ही पीछे वाला स्टेट है, ठीक है. Next, what does think this table show? The first column of the table show that the Kerala, out of the 1,000 children born, 12 died before completing 1 year of the age. Infant mortality का रेट मतलब होता है before 1 year, मतलब 1 साल के पहले जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु, उनकी डेथ रेट होती है. तो केरल में कितना है, 1,000 बच्चों के बाद कंपेयर में 12 मरते हैं completing 1 year, but Haryana proportion of the children dying within 1 year of the birth was 36. लेकिन हरियाणा में तो सबसे हाई है, 36 मर जाते हैं, which is 2 times more than the केरल, जो कि केरल का दुगुना तिगुना है, which is 2 times more than that केरल. On the other hand, the per capita income of the Haryana is more than just Kerala as shown in the table. अब हरियाणा का जो per capita income था वो केरला से हाई था. Just think of how dear you are to your parents. Think of your
how everyone is so happy when the child is born. Now try to think about the parents whose children died before they even celebrate their first birthday. इसका मतलब अभी तक तो हम खुश हो रहे थे कि हरियाणा का इनकम केरल के कंपेयर में सबसे हाई है, लेकिन ये सोचिए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है किसी फैमिली में तो कितना खुश होते हैं वो, लेकिन उनके बारे में सोचिए जहाँ पे बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं और उनकी फैमिली उनका फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाती है। एज ए स्टेट का हाई पर कैपिटा इनकम होने से भी क्या फ़ायदा जब वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रॉपर ना होने की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है। ठीक है, सो अब यही क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग सच में कह सकते हैं कि हरियाणा केरल से डेवलप स्टेट है? नहीं। क्लियर हुआ? 1.3 just think how clear dear you are to be your parents. Think of how everyone is so happy when the child is born. Now try to think about the parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must to be these parents. Okay. Next, note the year to which this data pertain. It is 2016, so we are not talking of the old time. It is nearly 70 years after the independence when our metro cities are full of the high as a building and shopping malls. यानी कि ये बहुत पहले की बात नहीं है। वी कैंट से कि ये तो इंडिपेंडेंस मिलने के जस्ट बाद की बात है मैम, और उस टाइम पे फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली नहीं थी, ऐसा नहीं है। ये तो अभी जल्दी की बात है, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन चुके थे हमारे कंट्रीज़ में। मॉल, रोड, डैम, ब्रिज, ये सारी फैसिलिटी हो रही थी। फिर हॉस्पिटल फैसिलिटी इतनी प्रॉपर क्यों नहीं है हरियाणा में कि मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है? ठीक। The problem does not end with the infant mortality rate only. The last column of the table 1.4 shown around half of the children aged 14 to 15 year in Bihar are not attending the school. इसका मतलब 14 से 15 साल के बच्चे भी बिहार में स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? मतलब वो क्लास 8 तक भी अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अब ऐसी कौन सी रीज़न है कि वो अपना स्कूलिंग नहीं कंप्लीट कर पा रहे? दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ अ ईयर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग. Those who could have been in the school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what they are reading. मतलब ऐसा कौन सा रीज़न है कि केरला में एजुकेशन, बिहार में एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते? रीज़न क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रॉपर या तो स्कूल फैसिलिटी नहीं होगी, या तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से 14-15 साल के बच्चों को ही चाइल्ड लेबर में डाल दिया जाता होगा। ऐसे कोई भी रीज़न हो सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इनकम बेस पे हम किसी भी नेशंस का डेवलपमेंट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ओके, टुडे वी स्टॉप हियर ओनली. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पब्लिक फैसिलिटीज़. आज हमने 2 पॉइंट पढ़ा. इनकम ऑफ द कंट्री, हाउ नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और द स्टेट, एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इज अवर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग द डेवलपमेंटल गोल. ये तीनों क्वेश्चन आपके नोटबुक में हो जाने चाहिए. हम पर्सनली ग्रुप में भी क्वेश्चन आंसर आपके नोट्स कभी भी डिमांड कर सकते हैं. सो बी रेडी विथ इट. टुडे वी स्टॉप हियर ओनली. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.